Good morning, students. Welcome to online political science class again. Today again we are moving towards the chapter. The chapter is chapter 1, that is challenges of nation building. So students, we have so far studied about the partition. How did India got its independence after a long struggle? और हमें तो स्ट्रगल करते करते जब हमें खुशी मनाना था एंड दैट टाइम एक पेनफुल चीज हमारे सामने में आया. व्हाट इज द पेनफुल थिंग? द पेनफुल थिंग इज द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. ओके, सो आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्ट्रगल हमें सुनने को मिलता है क्या कि द होल ऑफ इंडिया विल बी पार्टीशन्ड and from India other country will be created and that creation of the country is Pakistan. Okay, तो ये हमारे लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस था, बहुत पेनफुल था. दिस इज ए क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, nobody wants to get divided. कोई भी अपने लाइफ में किसी चीज के लिए डिवाइड होना पसंद नहीं करता. ठीक इस तरह से when we fought for our independence for a long time, afterwards when India was partitioned, we got independence, no doubt, from the British rule, but also it brought partition of the country. So we know that the Muslim League, which has been created by the Muslim people 1906, and that time this Muslim League has advanced the theory of this thing called two nation theory. Okay, two nation theory का उन्होंने एक कॉल दिया और they have वो डटे रहे उस प्रोसेस में कि हम किसी भी तरह से हम पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे. We will make one Islamic country for ourselves because we don't want to live in India. So that's how India and Pakistan has been created. Okay, so it was a long journey when we got liberation from the British rule, and after the liberation again some of our brothers and sisters or whoever our neighbors, maybe long time neighbors, they became separated from us, and then a new country came into being, that whom we call Pakistan. Okay, सो दिस पाकिस्तान और जो इंडिया का जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, ओके, दैट केम इन ए टू नेशन थ्योरी बेसिस. ओके, सो लेट्स गो टू द बोर्ड वर्क और हम देखते हैं कि आज का जो स्टोरी है वो क्या दर्शाता है. ओके, सो लेट्स गो टू द बोर्ड वर्क. सी नाउ स्टूडेंट्स, आई रिटन डाउन हियर द टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. When we came to know that India is being told to partition itself from एक लंबा सा हिस्सा और बड़ा सा हिस्सा इंडिया में रहेगा और एक हिस्सा 1/3 और आप 1/50 बोल सकते हो हिस्सा will go to Pakistan. Okay, so when this thing was declared, we can say that was done on the basis of this one. India was partitioned on the basis of two nation theory. Two nation theory. One is India, one is Pakistan. और two nation theory के बेस में ये पार्टीशन हुआ था. ओके, जब ये पार्टीशन हुआ ब्रिटिशर्स तो चले गए हमें छोड़ के, and they have told us that India will be partitioned. Okay, so when it was partitioned, it was found कि जो प्रोसेस है, जो पार्टीशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लंबा चला, बहुत पेनफुली चला. ये सिर्फ बोल के लोग चले गए, बट काम किसने करना था? इंडिया को. इंडियन जो उस टाइम के जो फ्रेमर्स जो थे और जो भी थे उनको करना था. ब्रिटिशर्स ने मैपिंग किया, एक कुछ उन्होंने ठीक ठाक करके गए, बट फिर भी उसका बहुत कुछ बाकी था करना. That thing has been done by the framers of our Indian Constitution, or maybe that time Jawaharlal Nehru जो interim prime minister बने थे. Okay, so let's see कि उस process में what are the painful things that has to be gone, and what are the things that has to be dealt with during the time of process of partition. Okay, so the difficulties that has been
arised during that time are, let's see, difficulties, problem of east and west. Okay, so अभी पाकिस्तान तो बनना था, कौन सा आइडिया पाकिस्तान को बनना था? बिकॉज वी नो द मैप ऑफ इंडिया, वी ऑल नो द मैप ऑफ इंडिया. अभी मैप ऑफ इंडिया में कौन सा एरिया है जिसको पाकिस्तान करार दे? ओके, सो इट was seen that two areas can be concentrated and can be put up together. तो क्या किया उन लोगों ने? ओके, नाउ two areas of concentration, ये जो concentration, okay, two areas of concentration उन्होंने यहाँ पे रखा. One is West Punjab and one is East Bengal. Okay, तो वेस्ट के साइड, पंजाब के साइड जो वेस्टर्न एरिया था, जो ऊपर के एरिया हमारे मैप के, दैट एरिया, और जो नीचे का हिस्सा जो बंगाल का एरिया था, दैट साइड. तो वेस्ट एंड ईस्ट दो एरिया को उन्होंने पकड़ा. ओके, दीज टू एरियाज हैज बीन कंसिडर्ड और टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, नाउ आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट व्हिच कुड नॉट बी जॉइन, अभी क्या था, ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कैसे करें? ओके, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा. ओके, फिर सोच लो कि अगर साउथ के साथ अगर वेस्ट को ज्वाइन करेंगे इस तरफ से, फिर ज्वाइन हो जाएगा. लेकिन ईस्ट और वहां पे वेस्ट है, उसको कैसे ज्वाइन करेंगे? अभी ये है ना, अभी आप देखो, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, अभी इस तरह से हो गया ये चीज. अब ये दोनों को मैपिंग में, ये दोनों को ज्वाइन कैसे करें? दोनों एरिया को ज्वाइन कैसे करें? ये ज्वाइन करना मुश्किल था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ज्वाइन अप दैट टू एरिया. ओके, एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये जो एरिया, ये पूरा पूरी मैपिंग में ये देयर वाज अ बिग साइज, देयर वाज अ बिग एरिया फाउंड, एंड मेनी ऑफ द मुस्लिम पीपल वेर बीइंग फाउंड इन दैट एरिया. Muslims were scattered actually in the whole of India, but majority of the people were found in this two area, and that's why the area concentration was on a west and east, West Punjab and East Bengal. Okay, so Pakistan was created comprising two territories. तो उन लोगों ने फिर सोच के उन्होंने क्या किया? They have made West and East Pakistan separated by over 1000 miles of Indian territory. फिर उन्होंने टू टेरिटरी को उन्होंने संभाला, और संभालने के बाद उन्होंने क्या किया? वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान separated by over 1000 miles of Indian territory. तो उनका जो मैपिंग का साइज था, वो मैपिंग का साइज को उन्होंने ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बाइफरकेट किया है, ऐसे डिवाइड किया है उनको कि ईस्ट और वेस्ट को उन्होंने ज्वाइन कर दिया. दोनों को मिला के उनका पाकिस्तान बन गया. बट लैंड वाइज जब हम काउंटिंग करते हैं तो ये कितना में डिफिकल्ट होता है? इट वाज 1000 माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी. तो जो ये जो गैपिंग है माइल्स लैंड वाइज जो मैपिंग में 1000 माइल्स का डिफरेंसेस है. ओके, बट समहाउ वेस्ट एंड ईस्ट का ज्वाइन करके क्रिएटेड पाकिस्तान वाज बीइंग क्रिएटेड. ओके, फर्स्ट टास्क ये था, बहुत बड़ा था. नेक्स्ट वन इज merger of northwest frontier province, merger of northwest frontier province. Okay, now और एक एरिया था वेस्ट के साइड में, और एक एरिया था, तो उस एरिया को लेना था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. एक जगह था, उस जगह को भी उनको इंक्लूड करना था उस जगह में. ओके, एक्चुअली देखा गया कि मेनी ऑफ द मुस्लिम्स उस टाइम में इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे who didn't wanted to go to Pakistan. Okay, यहाँ पर मुस्लिम जो थे वो भी डिवाइड हो गए थे एक्चुअली, कि some of the people they wanted to go to Pakistan, some of the Muslims they wanted to stay in India. Okay, तो करे तो क्या करें वहाँ पर? ओके, तो उसमें एक इंसान थे, एक लीडर थे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे. ही वाज खान अब्दुल गफ्फार खान. हु वाज ही? ही वाज खान अब्दुल गफ्फार खान. ओके, and he was known as the Frontier Gandhi. In Indian history, he was known as the Frontier Gandhi. So this person vehemently opposed the partition of the country. Okay, but ultimately उनका नहीं सुनना था. Ultimately partition happened. Okay, और यहाँ पे लिखा मैंने, देखो कि खान अब्दुल गफ्फार खान, leader of Northwest Frontier Province, opposed the partition. Okay, but later this area merged with पाकिस्तान. तो वेस्टर्न साइड में बहुत सारा एरिया को मार्च किया उन्होंने. तो वेस्ट का बहुत सारा जगह को लिया गया पंजाब के साइड से,
और नॉर्थ जो वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसका भी एक पूरा पूरी ज्वाइन हो गया उस जगह से, और ईस्ट का एक साइड ईस्ट बंगाल जो है वो भी जाके वहां पे पूरा पूरी ज्वाइन हो गया। ओके, सो दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बट ये इतना डिफिकल्ट था, ये करने के लिए भी उनको बहुत मुश्किलें आई थी। ओके, सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट दे हैव डन दैट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हम देखते हैं धीरे धीरे कि इसके बाद क्या हुआ था और क्या क्या चीजों के सामना करना पड़ा उनके सामने में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हम और एक देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो वी ऑल नो कि प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट और वेस्ट जो है इसमें से फिर लोगों का उसको डिवाइड करना, बिकॉज मेनी ऑफ द मुस्लिम्स आई टोल्ड यू दे डिडंट वांटेड टू गो फ्रॉम इंडिया। तो इट वाज सीन एक्चुअली कि बहुत सारा जो एरिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरिया है दैट वाज अ लार्ज एरिया एंड मेनी ऑफ द मुस्लिम्स वेर देयर इन दिस एरिया। ओके, अभी क्या था यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्ट एरिया थे वहां पे बहुत सारे हिंदूज थे। ओके, और फिर बहुत सारे जो ईस्ट एरिया थे वहां पे मुस्लिम्स थे। अभी दोनों को अलग कैसे करें, हाउ टू मेक द डिफरेंसेस, अलग करना भी बहुत मुश्किल था उनको। ओके, बट दे हैव डन। अभी हमें सबको हमें पता है, जैसे कि ये थे ना ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ओके, फिर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो ये दो ईस्ट वेस्ट होके आ गया। वन पार्ट वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम दिस एरिया एंड वन पार्ट वेंट टू पाकिस्तान फ्रॉम दिस एरिया। वन पार्ट रिमेन इन इंडिया, वन पार्ट वेंट टू पाकिस्तान। ओके, तो ईस्ट वेस्ट का जो झमेला है, प्रॉब्लम है, ये इस तरह से सॉल्व किया गया। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं और एक चीज जो उन्होंने फेस किया दैट टाइम। ओके, दैट वाज व्हाट, नंबर 4, प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और पार्टीशन के टाइम में बहुत सारे माइनॉरिटीज लोग थे। ओके, सो मेनी ऑफ द माइनॉरिटीज पीपुल वेर स्टैक्ड। ओके, एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर, माइनॉरिटीज भी नहीं, एक्चुअली पीपुल ऑफ दैट टाइम, मेनी ऑफ द पीपुल दे डोंट नो वेयर टू गो, बिकॉज वेस्ट और ईस्ट को पूरा हिला दिया था उस टाइम में। एंड मेनी ऑफ द पीपुल हैड बीन स्टैक्ड एट दैट टाइम कि हम कहाँ पे जाए, इस एरिया से यहाँ पे आए, इस एरिया से वहां पे जाए, कहाँ पे जाए। ओके, सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग दैट हैज टू बी डन बाय द इंडियन लीडर्स, बट somehow or the other they have finished the task and the process of partition has been finished, जो बहुत क्विकली हुआ और थोड़ा सा टाइम लेके भी हुआ, बट बहुत क्विकली हुआ अगर हम लोग बोलेंगे, बिकॉज जो पाकिस्तान की जो एरिया था उसमें लॉट्स ऑफ पीपल वेंट हैज टू बी गॉन टू द पाकिस्तान एरिया एंड मेनी ऑफ द पीपल जो उस एरिया में थे, जो जिसको पाकिस्तान करार दिया गया। ओके, डिक्लेयर्ड, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट दैट एरिया इज पाकिस्तान। तो उस जगह में जो बहुत सारे हिंदूज थे, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया that from many of the Hindus of that area they should come to this area. Okay, so many Hindus came to this area, many of the Muslims who wanted to go to that area, they went to that area। और जो एरिया जो डिवाइड हुआ वो एरिया को तो पूरा यहाँ से हुआ उनको पूरा जो बाइफुर्केट कर दिया गया, उसको मार्क कर दिया गया और उसको निशाना में रखा गया, वन इज पाकिस्तान, वन इज India. Okay, so this is a very difficult task that has to be done by the Indian leaders at the after the independence, जो independence होने के बाद और just on the eve of independence. So this is what we have done, the process of partition, where we have seen the difficulties that the framers of the Indian Constitution and the interim Prime Minister at that time, Jawaharlal Nehru, they had to face
because of that partition process. Okay, students. So that's all for today. Thank you, students.